اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټولو ملګرو ته اوریدونکو ته د زړه د تله سلام وایم. خدای مو تل خوشحال لره، خدای مو تل آباد لره، په خیر کې اوسئ. ملګرو، نن د مختلفو داسې مسایلو په اړه چې هغه زموږ د وطن، زموږ د خاورې، زموږ د خلکو، زموږ د ولسونو د زړه درد جوړیږي، د هغې په هکله باندې یو خو په خپل منځ کې معلومات شریکول، بیا د هغې د کمولو دپاره موږ څه کار کولی شو، دا تر ټولو مهم یعنې زموږ به خبرې وي. ملګرو، په دې لنډ وخت کې اول به موږ خبره کوو په د ټارګټ کیلینګ په حواله سره چې په باجوړ کې یا په وزیرستان کې کومې هدفي وژنې شروع دي، یا د دغه نه علاوه ایکسټرا جوډیشل چې کوم کیلینګز دي، یعنې دا په پېښور کې چې کوم وشول، په هغه کې د خیبر کسان وو، د متنې کسان وو، یا داسې نورو علاقو کې کېږي. د دغه نه علاوه موږ په هغه باندې به هم خبره کوو چې څنګه معاشي قتل عام شروع دی د پښتنو. د نه علاوه لینډ ماینز کې زیاتوالی راغلی دی، داسې د آی ډي پیز مسلې دي او نور بلها هغه مسایل چې زموږ د خاورې، زموږ ولسونو ته راپېښ دي، د هغې په هکله باندې به زه نن اول لږ په اردو باندې خبرې کوم چې یعنې دغه خبرې چې کومې دي دا چې دلته کوم نور کامونه پراته دي چې هغه هم دا وار وي او په دې باندې پوه شي. سب سے پہلے ٹارگٹ کلنگ کی بات کرتے ہیں. ٹارگٹ کلنگ فاٹا جو تقریباً 2003-4 کے بعد یہاں پر آپریشنوں کے زد میں ہیں. پہلے یہاں طالبان آئے، پھر اس نام پہ کہ اس کو ہم نے یہاں سے ختم کرنا ہے، فوج آیا، آپریشن کیے. اس آپریشن کے لیے عام عوام جو تھے ان کو آئی ڈی پیز بنا دیا گیا، اور یہ آئی ڈی پیز جب بنے تو اس دورانیے میں ان کے گھر بار تباہ ہو گئے، ان کے مارکیٹ تباہ ہو گئے، ان کے اسکول، یعنی زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی بھی ضرورت تھی ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں رہ گیا. یہ دوسرے یعنی علاقوں میں در بدر پھر رہے تھے، فقیروں کی طرح زندگی گزر رہے تھے، مگر ان لوگوں کا یہی ایک ارمان تھا کہ جو بھی ہو بس امن آ جائے، ہمارے علاقے میں جنگ نہ ہو. واپسی پر جب آئی ڈی پیز اپنے علاقے جا رہے تھے تو علاقے کے ہر چند کلومیٹر بعد وہاں پر چیک پوسٹ ہوتے تھے. جو بھی چوٹی تھی ان پر پیکٹ اور قلعے بنا دیے گئے تھے، یعنی اس علاقے میں انٹری کے یا پھرنے کے یا وہاں پر آنے جانے کے لیے کوئی ایک بھی ایسا راستہ نہیں تھا جس پر سیکیورٹی تعینات نہیں تھی. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان چیک پوسٹوں پر عام عوام کے ساتھ کیا رویہ اپنایا گیا، یہ مقصد نہیں. مقصد یہ ہے آج کے ویڈیو اور اس پیغام سے کہ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی جب ایک ایسا نظام بنایا گیا تھا، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ فاٹا میں فوج نے، سیکیورٹی اداروں نے ایک ایسا نظام بچھایا ہے جس میں علاقے کا 1 انچ زمین بھی ان کے نظروں سے، ان کے آنکھوں کے دید سے دور نہیں، پوشیدہ نہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ فاٹا میں چیک پوسٹ، پکیٹ، قلعے اور کیمپ یہ ایسے ترتیب سے بنائے گئے ہیں کہ ہر ایک سے ان یعنی جو بھی علاقہ ہے جہاں پر بھی ہے یہ سب ایک نہ ایک جگہ سے دکھائی دیتے ہیں. اور کون سے؟ ان کے پیکٹ سے. اور ان جو فوجی پیکٹ ہوتے ہیں یا قلعے ہوتے ہیں، ان سب میں جو تعینات ہوتے ہیں اہلکار، ان کی 2-2 گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، اور رات کے وقت بھی دیکھنے والے دوربین بھی ان کے پاس ہوتے ہیں. پھر یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اتنی سخت سیکیورٹی نظام کے اندر پیریفریز میں بھی نہیں، میران شاہ کے وسط میں آتے ہیں اور لوگ ٹارگٹ کلنگ کر کے واپس چلے جاتے ہیں. ایسے حالات میں
जब आम कबायली अवाम के साथ असलहा नहीं है। उनका असला खुद इन्होंने दावा किया है और है भी ऐसा कि वो सारा सफाया हो चुका है। असला तो छोड़, घर में बर्तन वगैरह जब नहीं रह गए थे तो ऐसे हालात में बंदूक लिए जो लोग फिर रहे हैं वो कौन है? और जब भी यहाँ पर टारगेट किलिंग हो जाता है तो फिर इलाके में जब भी बात होती है यहाँ पर इंतज़ामिया के साथ तो नामालूम अफराद का नाम लिया जाता है। आइए देखते हैं कि यह नामालूम अफराद है कौन आखिर। दोस्तों, नामालूम अफराद हमारे इलाके में सूरत हाल ये हैं कि कबायली इलाकों में हर गांव के लोग एक दूसरे को जानते हैं। हर इलाके के लोग एक दूसरे को जानते हैं। सदियों से या एवं सालों से पूरी उम्र गांव में गुजारने के साथ साथ सारे चेहरे आशना होते हैं। मगर वहाँ पर एक किस्म के वीगो डाले होते हैं, डाटसन होते हैं, जिनके ब्लैक टिंटेड शीशे होते हैं, वो पेरते रहते हैं और उनको हम कोई नहीं जानते। वो ब्लैक शीशों वाली गाड़ियाँ फौजी किलों से आते रहते हैं। बताया ये जाता है कि ये इदारों वाले हैं। तो नामालूम फिर कौन हो गए? क्योंकि यहाँ पर तो जितने भी लोग हैं वो तो आर्मी खुद भी वो भी पहचानी जा सकती है, तालिबान की शक्ल भी पहचान, लेकिन ये जो ब्लैक टिंटेड शीशे वाले वो है गाड़ियाँ हैं, इनका न तो चेक पोस्ट पर कोई तलाशी होती है, ये सीधा आते जाते हैं और ये कलों के अंदर भी आते जाते हैं। तो ऐसे हालात में जो नामालूम अफराद की बयान किया जाता है, क्या वो ये तो नहीं है? अगर ये नहीं है, चलो अगर रियासत का यही दावा है कि ये नहीं है, तो फिर ये बताएं कि आरिफ वज़ीर को जो वो बताते हैं कि इनको उस नामालूम अफराद ने शहीद किया, तो फिर इन नामालूमों को मालूम करने के लिए रियासत ने कौन सा इकदाम आज तक किया है? कोई नहीं। फिर क्यों नहीं करते हैं? ऐसे माहौल में जब यहाँ पर काले शीशों वाले गाड़ियाँ आपके चेक पोस्ट पर बिल्कुल फ्लो में जाते हैं और आपके कलों में भी अंदर आते जाते हैं, और ऐसे हालात में जब उनको कोई पहचानता भी है, नामालूम का मान ये है कि उसको कोई पहचान नहीं रहा, और यहाँ पर टारगेट किलिंग्स भी होते हैं, और फिर आप दोबारा उन टारगेट किलिंग्स की तहकीकात से भी दूर भागते हो, तो फिर यहाँ पर जो लोगों के ज़हन में शक और शुबात होते हैं वो यकीन में बदल जाते हैं। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में टारगेट किलिंग जारी है। एक तरफ दुनिया कोरोना की वबा की वजह से सब ने एक्टिविटीज़ कम कर दिए ताकि गैदरिंग्स ना हो, कोई काम ना हो। दूसरी तरफ यहाँ जब से कोरोना की वजह से अवाम ने डिस्टेंसिंग शुरू किया है या अवाम ने इसका लिहाज शुरू किया है, तब से यहाँ पर टारगेट किलिंग और दीगर वाक़यात ज़्यादा हो गए हैं। सियासी लोग या तहरीकें ये इस बीमारी के दौरान, वबा के दौरान अपनी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा नहीं करते हैं ताकि गैदरिंग्स कम हो और इसके फैलने का जो ख़तरा है वो कम हो। तो दूसरी तरफ ऐसे वाक़यात बस दस्तूर होते रहते हैं जिनके बारे में पूछना या जिनका इंसाफ मांगना आम आवाम की मजबूरी हो जाती है। तो एक तरफ तो वो ये ले रहे हैं, ये एज ले रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आवाम को मजबूर करते हैं कि वो गैदरिंग करे, वो एहतजाज करे। यहाँ पर आज भी अभी लाइव वीडियो से पहले भी खबर आया कि नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एपी के इलाके में टारगेट किलिंग में एक नौजवान को शहीद कर दिया गया। दोपहर आज सुबह 2 लाशें खाइसुर में मिली, नॉर्थ वज़ीरिस्तान का इलाका है। कल शाम नॉर्थ वज़ीरिस्तान के दादाखिल इलाके में एक सरकलम लाश मिली। यहाँ पर अमन अमान का ये सूरत हाल, लोगों के घर बार, लोगों के मार्केट है, लोगों के कारोबार और साल साल IDP ज़िंदगी गुजारने के बाद ये हाल है। और ऐसे सूरत हाल में जब यहाँ पर फौजी किलों, पैकेटों और चेक पोस्टों का एक ऐसा जाल बिछाया है कि 1 इंच ज़मीन भी उनके
नज़रों से पोशीदा नहीं है, उनके दीद से पोशीदा नहीं है। ऐसे सूरत हाल में आम आवाम के पास, यानी यहाँ पर सिक्योरिटी इदारों, फिर वो कहते हैं आवाज़ उठा रहे हैं लोग, क्यों सिक्योरिटी इदारों पर? देखो, इस बटन से लेकर जो भी चीज़ खरीदता है आवाम इसका टैक्स देते हैं। ये बटन का डब्बा भी अगर कोई चेक करे तो इस पर टैक्स लिखा होता है जो आम आवाम अदा कर रहे हैं। इसके बदले में अमन, एजुकेशन, हेल्थ, रोज़गार के मौके ये रियासत ने देने होते हैं। यहाँ माहौल ये है कि अमन तो दूर की बात है, इंसाफ को तो दूर की बात है, टारगेट किलिंग से या दूसरे वाक़यात से लोगों को बचाना, महफूज रखना, ये तो दूर की बात है। ऐसे वाक़यात के बाद अगर कोई एहतजाज भी करे तो उस पर FIR दर्ज करते हैं और उल्टा यही सिक्योरिटी अदारे उसको टार्चर करते हैं, उसको गद्दार कहते हैं। अभी हालिया चंद दिन पहले खैबर एजेंसी के एक नौजवान टीचर थे, इरफानुल्लाह, मैं जब उनके वालिद से मिला, वो रो रो कर बता रहे थे कि इंतहाई सख्त गुर्बत में मैंने उनको पढ़ाया। अब हम, यानी वो टीचर इरफान के माँ बाप, वो कह रहे थे हम अब बूढ़े हो गए और हमारी ख्वाहिश थी कि अब तो हमारा बेटा जवान हो गया है, अब ये कमाएगा और हमारा देखभाल करेगा, और उनको एक फेक इनकाउंटर में मारा गया। 13-14 दिन तक वहाँ पर धरना जारी था और उस धरने के आखिर में फिर भी उनका FIR दर्ज नहीं किया गया। ये इंसाफ का ये ही इंसाफ है। यहाँ पर चलो वो इंसाफ नहीं दिला सकते, सिरे से FIR नहीं करते। इसी तरह गुज़श्ता चंद महीनों से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और टारगेट किलिंग्स के मसाइल आते रहते हैं, ये वाक़यात होते रहते हैं, और रियासत की तरफ से अगर आवाम की तरफ से शोर आए तब रियासत की तरफ से कोई कर्नल या कोई DC जाकर उनके फैमिली के साथ मिलकर उनको थोड़े पैसे दे देते हैं, इंसाफ फिर भी नहीं देते हैं। कातिलों पर यह हमदर्दी क्यों है? रियासत आवाम की खैरख्वाही के लिए या कातिलों को बचाने के लिए बनाई गई है? ये रियासत यहाँ पर पश्तूनों के खून बहाने वालों को माफ़ या उनको उनके हवाले से जो इंसाफ होती है वो नज़रअंदाज क्यों करती है? एक तरफ जंगों और तबाहियों के शिकार लोग ज़हनी तौर पर इन गम और परेशानियों की वजह से बहुत तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। मुआशी सूरत हाल भी यहाँ का ये है कि वो कबायली इलाके या दीगर पश्तून इलाके जिनके सरजमीन पर मदनियात का पूरा एक जाल बेचा हुआ है, उनके बच्चे यहाँ पिंडी इस्लामाबाद में लोगों के जूते पालिश करते हैं 10-10 रुपये। ऐसे सूरत हाल में अमन का भी और दीगर वो भी सबताज है। ये पॉलिसियाँ किसने बनाए? हंसता बसता पश्तूनख्वा तबाह कर दिया है। यहाँ पर कोई जंग नहीं था। ये इन जर्नलों के स्ट्रेटेजिक डेथ पॉलिसियाँ जो थे, इन्होंने इनको तबाह कर दिया। इनके फैसलों ने इन चीज़ों को तबाह कर दिया। फिर आके बताते हैं कि यहाँ तो 5600 फौजी भी इसमें मारे जा चुके हैं। देखो, उनके फैमिली वाली भी ये बात सुन ले कि ये फौजी किसकी वजह से मार गए। ये उन पॉलिसियों की वजह से जो इन जर्नलों ने, इन फौज ने, इन इदारों ने बनाए हैं। ये उन स्ट्रेटेजिक डेथ पॉलिसियों जिनकी वजह से फाटा तबाह हुआ, दिगर तबाह हुए, उनकी वजह से ये पॉलिसियाँ उन्होंने खुद बनाए थे। इन जर्नल पराहे जंगों में हिस्सा लेकर खुद तो जर्नलों ने डॉलर कमाए, खुद तो ऑस्ट्रेलिया में जजीरे लेते हैं, तो फिर यहाँ फौजियों के माएँ और बहनों को बुला करके आपने बका की जंग लड़ी। और बका के लिए किस चीज़ की बका? यहाँ पर तो कोई चीज़ था ही नहीं।
एक तरफ तो तुम बका की बात कर रहे हो, तो दूसरी तरफ आपका कर्नल इमाम कह रहा है कि ट्रेनिंग मैंने दी, यानी जिन लोगों को तुमने ट्रेनिंग दी उनने मारे हैं, तो फिर किस तरह आप पर गलत? आम आवाम तो छोड़, आप तो खुद जो आपके साथ है उनको धोखा दे रहे हो। दूसरी तरफ इन्हीं सारे पॉलिसियों के ज़रिए पश्तूनों का हर ज़िंदगी गुजारने और ज़िंदगी को बसर करने वाले जितने भी, ख्वाह उनका इलाका हो, ख्वाह उनका कारोबार हो, ख्वाह उनके घर बार हो, जो भी है ज़िंदगी से, उन सबको तबाह कर दिया। और इंसाफ का हाल ये है कि यहाँ पर बड़े बड़े कातिल रावानवर है या एहसान है, वो खुद फिरते रहते। क्या गुजरा होगा पश्तूनों के दिलों पर जब उनको ये खबर दी गई कि हर धमाके की जिम्मेदारी कबूल करने वाला एहसान को आसान रास्ता दे दिया गया। रावानवर आज़ाद फिर रहा है, ये तो वो मालूम नाम है। इस तरह कितने नामालूम नाम होंगे जो एक तरफ तो आवाम को मार रहे हैं, पश्तूनों को मार रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं पश्तूनों के टैक्सों पर ऐश और इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यही सूरत हाल बाजावड़ का अब भी है। हर रोज़, हर दूसरे रोज़ वहाँ पर टारगेट किलिंग होता है। न तो सियासी लीडरों को वहाँ छोड़ा, न आम आवाम को, न मज़दूरों को। और कोई एहतजाज के लिए निकले तो वहाँ किलों में बैठे मेजर कर्नल इंतज़ामिया के ज़रिए भी सबको बेचकर उनके घरों पर छापे मारकर उनको खामोश करने की कोशिश करते हैं। लोगों को आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं है, इतना स्पेस भी पश्तूनों के पास नहीं रह गया। वो छोड़ के वो इंसाफ हासिल कर सके, वो भी छोड़ के उनके लिए मसाइल पैदा किए। उनको अपने इस गम और इस दर्द की आवाज़ उठाने की भी इजाज़त नहीं। अगर उठाते हैं तो उनको सज़ा दी जाती है। पीटीएम के हर लीडर और वर्कर को उन्होंने जेलों में इसलिए डाला कि लोगों के लिए एक मिसाली सज़ा बन जाए कि अपने वतन के लिए, अपने पश्तूनख्वा के लिए आवाज़ उठाना जुर्म है, और बरमला इजहार करते हैं इनका। तो इन हवाले से, बदअमनी के हवाले से, ख्वाह वो बाजावड़ है, ख्वाह वो वज़ीरिस्तान है, या ख्वाह वो पिशावर और खैबर है, या दीगर इलाके हैं सवात से लेकर चतराल से लेकर चमन तक, इन सब पर हम पश्तून, ये गम हमारा बराबर है। ये हम सब एक जैसे महसूस करते हैं। बाजावड़ की अगर हमारी माएँ बहनें और बूढ़े बुज़ुर्ग रोते हैं, हम सब महसूस करते हैं। और वज़ीरिस्तान में या किसी दीगर इलाके में रियासत इस हवाले से पश्तूनों को बहुत ज़्यादा मजबूर करके आगे चली गई है। और वही इस बात जिसको वो क्लियर कर रहे हैं, कल परसों भी इस बात में 95 घरों को जला दिया गया था और आज तक उसका कोई पूछने वाला नहीं। आईडीपीज़ अभी तीरा के कोकी खेल जो राजगल के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो 8 साल बाद भी आईडीपीज़ हैं। 8 साल और फिर चले जाएंगे और लैंड माइंस फिर वहाँ होंगे। तीरा के एक नौजवान कल एक लैंड माइंस में, वो लैंड माइंस के धमाके का शिकार हो गया। और इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान में गुज़श्ता 4 दिनों में 3 वाक़यात, 4-5 दिनों में 3 वाक़यात लैंड माइंस के हो गए। मैं ये भी बताता चलूँ कि एक कबायली इलाकों के जो पश्तून इलाके हैं, जो पश्तून हैं, माशी तौर पर इंतहाई गुर्बत के शिकार हैं। वहाँ पर वालिदैन और बच्चे सुबह के वक्त भेड़ बकरियाँ पालते हैं, उनसे दूध वगैरह बेचकर थोड़ा कमा लेते हैं। और हर रोज़ पहाड़ों से एक बच्चे की लाश या ज़ख्मी जिस्म पहुँच जाता है। बारूदों के धुओं से हमारे बच्चों के चेहरों का
जो रूह होता है वो ख़राब कर दिया जाता है। और जब आप मुतालबा करोगे कि फ़ौज इन चीज़ों को या आर्मी या दिगर है ये साफ़ कर दे, तो वो आ जाते हैं, फ़ोटो सेशन कर देते हैं, टीम आ जाती है बिल्कुल। फ़ोटो सेशन के बाद वो सोशल मीडिया और दिगर मीडिया पर दिखा देते हैं कि हम तो निकाल रहे हैं ये लैंड माइन्स, फिर वो गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं। यहाँ पर लैंड माइन्स के लिए उनको निकालने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन मादनियात को निकालने के लिए फिर वो तकड़े हैं। उनके लिए तो पूरे पूरे फैक्ट्रियाँ आते हैं, उनके लिए तो पूरे पूरे कंपनियाँ आते हैं। मारी पेट्रोलियम गैस कई सालों से नॉर्थ वजीरिस्तान में वहाँ के मादनियात लूट रहे हैं। दीगर पश्तून इलाकों में मादनियात लूटने के लिए इनके पास टीमें नहीं, पूरे पूरे कंपनियाँ हैं, लेकिन लैंड माइन्स के लिए नहीं है। वो लैंड माइन्स फिर ये उनको एक ड्रामा बना देते कि बस हमने किया वो है ये है। नॉर्थ वजीरिस्तान के IDPs अब भी गोलान कैंप खूस में रहते हैं, बकाखिल कैंप में रहते हैं। गोलान कैंप खूस के एक नौजवान 2 दिन पहले खालिद रहमान नाम था, वो आया तो उनको चेक पोस्ट पर गिरफ्तार करके अभी गायब हैं। ना ताना, न पुलिस, न कोई और चीज़, बस डायरेक्टली गायब कर दो और इंटरमेंट सेंटर में डालो। अक्टूबर 2019 में इंटरमेंट सेंटर के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला गया कि पुलिस को दे दें या जेल में भेज दिया जाए, जितनी भी है अदालत में पेश कर दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वही फैसला फिर स्टे ऑर्डर लिया और अभी तक पड़ी है। बाजवा के एक्सटेंशन के फैसले के लिए जल्द अज जल्द बंदोबस्त कर दिया जाता है, लेकिन इंटरमेंट सेंटर और इस तरह हवाले से सफाई यहाँ पर इंसाफ के हवाले से फिर बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए। बाकी भी यहाँ पर हर लेवल पर जो मसाइल पैदा किए गए हैं। दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो ट्रेड क्रॉसिंग्स है, चमन गेट है, गुलाम खान गेट है, इस तरह खुरम एजेंसी में गेट है, अंगूर अड्डा गेट है या तुरखम गेट है, इनके हवाले से ये बाकी लोगों को ये पता नहीं है। ये जितने भी ये रास्ते हैं इन पर चेक पोस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं और हर चेक पोस्ट पे पैसे लेते हैं। पहले तो कारोबार को इतना महंगा कर दिया है और यहाँ पर जो बॉर्डर का कारोबार था वो NLC के हवाले कर दिया गया और फिर इतने ज़्यादा चेक पोस्ट और हर एक चेक पोस्ट उनमें से हर एक इदारा अपने लिए खुद लेते हैं। यहाँ पर लोकल इंतज़ामिया का अपना टैक्स होता है, फ़ौज का अपना होता है, इदारों का अपना होता है, सूबाई अपना होता है, मरकज़ी अपना होता है। उन सब में फिर कारोबार करो और फिर वो भी जब भी चाहे बंद कर दे। गुज़श्ता चंद महीने से जब करतारपुर बॉर्डर बंद था तो 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शाह महमूद कुरैशी ने इंडिया से अपील किया कि ये खोल दे, कारोबार के हवाले से बड़ा नुकसान हो रहा है, और चंद दिन पहले वो खोल दिया गया। तासुब तो देखो, दूसरी तरफ चमन बॉर्डर जिस पर पश्तूनों का कारोबार है वहाँ पर फिर 37 दिनों से धरना बैठी है और मुतालबा कर रही है कि बॉर्डर कारोबार के लिए खोल दे। लोग वहाँ पर दूसरा कारोबार है नहीं लोगों का, बॉर्डर का जो वहाँ पर गेट था, चमन गेट था, चमन गेट का कारोबार था। तो गेट के कारोबार जब ख़त्म हुआ लोगों के पास अब एक दूसरे को कर्जा देने के लिए भी कुछ नहीं रहे और वो धरना भी एहतजाज भी कर रहे हैं, तब भी वो नहीं हो रहे। उनके वाले से वज़ीर दाखिला को शायद पता नहीं है, शायद पता रखने का भी या इसके हवाले से मालूमात रखने का भी उनका कोई मूड ही नहीं है, क्योंकि ये तो फिर उसमें नहीं आते हैं उनके अपनों में। तो चमन बॉर्डर के हवाले से भी धरना है और फिर दूसरी तरफ बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से बयान आते हैं कि बंद होने चाहिए क्योंकि इसके ये इस पर दहशतगर्द आते जाते हैं। पहले तो आपकी वहाँ पर सिक्योरिटी कड़ी है, अगर वो उनको आने जाने न दे तो वो नहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं। और फिर आप बात करते हैं यहाँ पर मुसल्लह लोगों की आने जाने की, ये जो रन लाइन के करीब जितने लोग हैं उनसे पूछें कि कितने रास्ते तुम्हारे इन हुकूमत ने उनके लिए खुले हैं। और दूसरी बात,
बलूचिस्तान में जब भी धमाका होता है तो कहा जाता है कि रा ने किया सिपेक को ख़राब करने के लिए। तो रा के साथ जो बॉर्डर है उनको तो बहुत जल्द खोल देते हो। उनके हवाले से तो आप लोगों के बयानात और ख्वाहिशात दोनों अजीब है। और फिर यहाँ पर आम आवाम के कारोबार के जो रास्ते हैं वो भी बंद करो। दहशतगर्दी का लफ्ज़ पश्तूनों के इस्तेसाल के लिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको जलील करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। हालांकि दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के कर्नेलों, जर्नलों, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो और वज़ीर आज़म तक के लोगों के बयान है कि इनको ट्रेनिंग किसी रियासत के इदारों ने दी और सज़ा इनका किसी और को दे दो। और दिगर जो यहाँ पर कबायली इलाकों में हालिया चंद हफ्तों से ये जो आम आवाम के दरमियान यानी कबायली जो जंगें होते हैं यानी आपस में लड़ाइयाँ होते हैं, उनके हवाले से भी हक़ाइक़ यही है कि जब भी यहाँ पर कोई कबायलियों के दरमियान लड़ाई होती है तो इसमें सफ़े अव्वल में वो लोग होते हैं जो इदारों के लिए जासूसी करते हैं या इंतज़ामिया के बहुत करीब होते हैं। इस हवाले से अभी सिर्फ चंद हफ्ते में जंडोला और स्पिनकाई रज़ाई के दरमियान, तुयकुला में दोतानी और वज़ीर के दरमियान, बदर और शक़ई के दरमियान, खैसूर और शक़ई के दरमियान, AP और मदाखिल के दरमियान, कुरम एजेंसी में दो कबायलियों के दरमियान, सलेमान खेल और मंदोखेल के दरमियान, ये लड़ाइयाँ हर उस वक्त शुरू हो जाती है जब यहाँ पर इत्तिफाक और इतिहाद के लिए एक राह हमवार हो जाती है। और इस हवाले से मसला ये होता है कि जो आम वो होते हैं यानी यहाँ के ज़मीन के कागजात होते हैं उनको मिसल कहा जाता है और ये मिसल सरकार के पास होती है। जब तक इस लड़ाई में खून नहीं बह जाता है सरकार की तरफ से वो मिसल नहीं आते। दोनों तरफ से लोग तैयार होते हैं कि सुलह के लिए कुछ तो मिले हो जाए। जवान हर वक्त वहाँ पर रैली निकाल देते हैं कि हमारा अमन हो अपने इलाके में, ये चीज़ें ना हो, लेकिन कोई किरदार नहीं अदा होता है इस हवाले से। और फिर जो फैसला होता है वो भी आर्जी कर देते हैं। बस इतना फैसला होता है कि चंद हफ्ते या चंद महीने के लिए वो एक दूसरे से हट जाए, बाकी इस हवाले से कोई भी इस तरह वो नहीं आता है यानी मुस्तकिल फ़ैसला जिससे ये मुस्तकिल तौर पर वो मसला हल हो जाए। और जब भी ये PTM शुरू हुआ था उसके हवाले से जो भी यहाँ कबायली इलाकों में पॉजिटिव चेंजेस आए थे उनको अब ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। न तो यहाँ नेटवर्क अलाउड किया जाता है और न यहाँ पर 3G 4G या इंटरनेट तो दूर की बात है, आम नेटवर्क भी बहुत सारे इलाके में नहीं है। स्टूडेंट्स के हवाले से 3G 4G नहीं है। मैं पूरे यानी फाटा के लोग जानते हैं, ये सुनते हैं तकरीबन, फाटा में जितने भी किले हैं उन सब में इंटरनेट मौजूद है। और वो इलाके जहाँ पर मुसल्ला ग्रुप रहते हैं, ज़रमेलन वगैरह, वहाँ पर भी इंटरनेट मौजूद है। बंदूक वालों के लिए इंटरनेट मुहैया, कलम और किताब वालों के लिए नहीं है वहाँ। तो पूरा एक मिलिटराइज्ड सिस्टम बनाया गया है और इस मिलिटराइज्ड सिस्टम में आम आवाम इन सब चीज़ों का, इन सब ख़तरनाक अज़ाइम का के हवाले से ये मसाइल और ये गम और ये दर्द बर्दाश्त कर रहे हैं। मादनियात एक तरफ अगर देखें तो हरनाई, दुखी, समावलंग, ये जनूबी पश्तूनख्वा यानी बलूचिस्तान के पश्तून इलाके हैं जहाँ पर बहुत भारी टैक्स वसूल किया जाता है। पर टन 300 रुपये सिर्फ FC वाले लेते हैं और इसके हवाले सूबाई, PMDC और मरकज़ी बहुत भारी टैक्स पर टन अदा किए जाते हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर मुसल्लह लोग आ जाते हैं, वो भी बता लेते हैं। दुखी में कई बार ऐसा हुआ और फिर सिक्योरिटी नहीं होती, सिर्फ
बस पैसे लेना और टैक्स लेना, और उन टैक्स का क्या रिजल्ट्स आते हैं? कुछ नहीं। करक गैस है, करक में एक यूनिवर्सिटी है, खुशहाल खान यूनिवर्सिटी, कई साल हो गए वो यूनिवर्सिटी आबाद नहीं हो रही है क्योंकि उनका फंड नहीं है। वो करक जो पर डे इतना गैस फराहम करती है जिससे हर ज़िले में एक यूनिवर्सिटी कायम की जा सकती है, उस करक का अपना भी यूनिवर्सिटी नहीं चल रही है फंडिंग की कमी की वजह से। और उस कंपनी में लोकल कोई नौकरी नहीं, लोकल कोई गैस नहीं, और वहाँ पर यानी जितने बाकी इलाके हैं नॉर्थ वज़ीरिस्तान में अभी और साउथ वज़ीरिस्तान में चलगोज़ों का अभी 1 महीने में मौसम है और ये चलगोज़ों का फल तैयार हो जाएगा। अब ये जब भी वज़ीरिस्तान में चलगोज़ों का वक्त आ जाता है तो यहाँ पर टारगेट किलिंग ज़्यादा हो जाता है। आसपास शवाला और आसपास इलाकों में डायरेक्ट टारगेट किलिंग शुरू हो जाता है और यहाँ पर रहने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाता है। और फिर जब लोग वहाँ नहीं चले जाते हैं तो फिर पता नहीं यहाँ पर चलगोज़ों के बड़े बड़े जो जंगल है उसको कौन कहा जाता है। और ये चलगोज़े अगर आम लोगों की रसाई हो भी जाए तो भी उनके लिए एग्री पार्क वगैरह बनाकर वो वहाँ पर बाय फोर्स उनसे ख़रीदते हैं। किसी को इजाज़त नहीं कि एक ट्रक भी वहाँ से निकाल दे या रोड पे डायरेक्ट चेक पोस्ट पे रुकवा कर उनको वापस कर देते हैं। और दरादम खेल में अभी भी कोयले का मसला चल रहा है। कोयले के हवाले से फौज और दीगर इलाके एक तो भारी टैक्स लेते हैं, दूसरी इन सारा सबके इख्तियार अपने पास लेते हैं, मखसूस लोगों पर का उन पर अजारादारी कायम करके उनसे अपने काम भी लेते हैं। ये जो दरादम खेल में मसला चल रहा है इसके हवाले से धरना जारी है। उनका मुतालबा यहाँ सिर्फ इतना है कि आप लोग हमारा साथ न दे, न उन लोगों का जिनको काबिज या जो सब चीज़ें उनके पास है उनका साथ है, बस जो इंसाफ है जो वो मिले। इंसाफ क्या है इसके हवाले से ख़ुद फ़ौज ने, इदारों ने, इंतज़ामिया ने और सब ने मिलकर एक 10 नुकात का एक एजेंडा लिखा था। वही वो कह रहे कि सिर्फ यही अप्लाई करे। एक तरफ कोरोना की वबा को न फैलने के लिए इक़दाम की दावे कर रहे हैं तो दूसरी तरफ लोगों को मजबूर कर दिया जाता है कि वो धरने और एहतजाजों पर बैठे। ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है और यहाँ पर दोगलापन को बहुत वाज़े तौर पर आश्कारा कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि लाहौर में करतारपुर के रास्ते वो सिखों के लिए मजहबी जगह न बनाए। रियासत को हर जितने भी मज़ाहिब है उनका ख्याल करना चाहिए, लेकिन अगर औरंगज़ेब में डबोरी मस्जिद बनाने की बात आ जाए तो फिर वहाँ पर रियासत इजाज़त न दे। अगर यहाँ पर कोई मसला है तो हल कर दे, अगर इस पर कोई मसला है तो हल कर दें। यही इंतज़ामिया जो कबायली मशान के जरगा जब भी फ़ौज की या दूसरों की तारीफ़ करनी हो तो उनको तो बुला सकते हैं, लेकिन जब यहाँ से के ज़रिए मसाइल हल करने की बात आ जाए तो फिर नहीं हल कर सकते। तो बाकी पख्तो बांधे दासा खबर कौल ग़वाड़म जनूबी पश्तूनख्वा के बलहा डेर चेक पोस्टूना दी 15 चेक पोस्टूना सिर्फ चित्त द कोयटा ना रवान से तर रो परा दे दी हदूद पर और पदे हारी वो बांधे द कचूक पेट्रोल पकलाते रही या गाड़ी ते रही द दो खपल टैक्स वार्षे मौजूद दी बावजूद दगे दाग़ हुकूमत वाई चित्तर हा घर बारा नफसी नो चिता सिर्फ पैसे पे गटे पे चेक पोस्टू न बांधे नूर कार न का ओगा तरागर संग दी नूर तास खपल वाई जो ट्रेनिंग हम मुंगवार कड़े सोवर जावल ज स्वात चले वमा द स्वात से दन्ना हम दगा माहौल रवान दे चाहलता यो का दो यो मोटरवे तरवी अब बिल्कुल आबादी दा पास रवी बल्खवा हालत चुमरा हम सियाही मकामाती यानी द सेलो चक्कर सायु नदी दागूक शदन द कारोबारुना द आम उलस प खत्म लगे दी जका च द गुरुन तरफ ता दुई रोडुना शुरू कड़ल खाली गुरुन वकतल द खलकुन वनिवल बिया पेगे बन दुई सियाही मकामात जुड़ेवी सो काल वकल पस बा चुमरा हम सियाहत भी अगा बहालता
د فوج انډر خپلې پیسې پرې ګټلی شي. لاندې هوټل به بیا څوک استعمالوي؟ دا یې ځای چوڼیانې د خلکو د اجازې بغیر جوړې شولې او اوس خلک ولسونه هلته فریاد کوي خو څوک یې د اورېدلو نشته دی. د روډونو حال یې چې څوک هلته تللي دي هغو لیدلی چې تر کالام پره څه حال دی. خو بیا هم د سوات ولس د خپلې مسلې دپاره ویښ دی او ټول پښتانه ورسره ولاړ دي چې څو پورې د سوات ولس په دې قبضو باندې نه وي، یعنې دوی نه وي مطمئن شوي، تحریک به د دوی سره ولاړ وي. اوس راځمه دلته زموږ د مذاکراتو په حواله سره. مذاکرات اول خو موږ د داسې خلکو سره، یعنې یو داسې حکومت سره روان دي چې هغه دومره اختیار لري چې د مذاکراتو جواب موږ ورکوو چې او موږ تیار یو، هغه جواب نشر کولو هم هغو ته کوریج ورکولو هم د غریبانو مجبوري وه. خو بیا هم چونکې موږ پښتانه یو د خبرو نه تښتو، بیا هم ورسره کینو. ټول کام ټول پښتانه د ډډه اوسي چې د چترال نه واخله تر چمن پره څومره هم ضلعې دي، د یو ضلع هم چې مسله پاتې وي پی ټي ایم به ولاړ وي، ټول پښتانه به ورسره ولاړ وي. موږ ټول یو په یو ځای یو، اتفاق مو دی، اتحاد مو دی او یو مو تاریخ دی، یو مو ژبه ده. موږ خپل اتحاد د چا د ړنګولو دپاره نه بلکې د خپلې خاورې د جوړولو دپاره کړی دی او همیشه به یې قایم ساتو. او د دې نه علاوه ملګرو یو دا خبره هم کومه چې څوک هم دلته به ډېر خلک راپاسي، ډېرو خلکو ټرایې وهم کړلې، هغه به رد بد وایي، هغه به کنځلې کوي، هغه به یو شی کوي، هغه به بل شی کوي. خو زموږ ملګری به قطعاً چیرې هم چاته نازیبا لفظ نه استعمالوي او نه به په دې باندې یعنې دغه کوي، اګنور کوی. موږ په خپله خاوره هیڅ د چا سره جګړه نه غواړو، نه د یو پارټۍ سره موږ دلته یعنې څه داسې عمل کولو چې د دوی او موږ په منځ کې فاصلې زیاتیږي، نه یې د جمعیت علما اسلام سره، نه یې د عوامي نیشنل پارټۍ سره، نه د پی کې میپ سره، نه د کیو ډبلیو پی سره، نه د ایون د پی ټي آی سره، نه د پیپلز چې زموږ څومره هم پښتانه دي سیاسي خلک، موږ د هغې سره هېڅ جګړه نشته دی. موږ د دغې خاورې د امن دپاره مشترکه کوښښونو ته هر وخت تیار یو. اوس هم زموږ غرونه لا خوندي نه دي، اوس هم له د بونیر په غرونو کې داسې خلک ناست دي چې د ورځې راشي او د خلکو نه بتې اخلي او دومره یې خلک مجبور کړی دی چې هغه بته چې واخلي بیا دومره کلکې دمکیانې ورکړي چې هغه غریب چاته ویلی نه شي چې زما نه یې بته واخیستله، چې ورشي هم هغه نه شي ویلی. زموږ پښتانه یې ډېر مجبور کړي دي، ډېر یې تباه کړي دي. موږ بلواکه ژوند کوو، زموږ په خپله خاوره د یو ضلع د خلکو هم هیڅ اختیار نشته دی. داسې کلان دی وګورئ زموږ ضلع مردان 400 صوابۍ دي، د دغو چې څومره د تنباکو پیداوار راځي په دا کې 1.5 ارب روپۍ ټیکس مرکز صرف ځنې اخلي. دا دوی کاروبار چې څومره ټیکس اخلي، دومره چې کومه خواره مزدوري دوی کړې وي دومره پیسې نه ورته ملګي، مسافرۍ ته مجبور شوي دي. د پېښور بازار هم کاروباري لحاظ سره تقریبا تباه شوی دی. داسې که وګورئ نور هم نو چې څومره د پښتنو مسلې دي د هغې په حواله به پی ټي ایم د مرکزي حکومت لخوا چې کومه هم کمیټي جوړیږي په دې کې به ښکاره ټولې مسلې ورته ژو، په یو مسله هم کمپرومایز د کام نه ورسره کوو، د کام په یو خبره کمپرومایز نه ورسره کوو. دلته که ایکسټرا جوډیشل کیلینګ شوی دی، که ټارګېټ کیلینګ شوی دی، که خلک یې ورک کړي دي، دا چې څومره هم دي هغه که د کومې پارټۍ سره دي، هغه که د کومې طبقې سره دي، هغه که د کومې پیشې سره دي، خو چې زموږ په پښتانه خاوره باندې څومره دا وژل شوي دي، د دغې حساب کتاب ته به ټروت اینډ ریکنسلیشن کمیشن خامخا دا پی ټي ایم چې نه کیو، پی ټي ایم به هر کله خپل مزاحمت خط تیز او جاري ساتي. قبضې یې کړي دي، قبضې یې د مدنیاتو کړي دي، یا په ځمکو کړي دي، ډي ایچ ای په نامه یا په بل نامه، یا په کاروبارونو کړي دي، یا یې په ځنګلونو کړي دي، یا په بل شي. دغې حواله سره به هم د هرې علاقې مسلې پی ټي ایم ورته دي چې څومره هم په وار اینډ ټیرر کې عام خلکو، عام ولسونو مارکیټونه
او کاروبارونه کورونه تابه شوي دي، هغه د پېښور بازار دی، هغه د کویټ بازار دی، هغه د سوات دي، هغه د باجوړ لوی سم دی، هغه د خیبر باړه ده، هغه د اورکزۍ ایجنسي کورونه دي، هغه کورم دي، یا که داسې راځي نارت وزیرستان او ساوت کورونه دي چې دوی ړنګ کړي دي مارکیټونه به په دې حواله سره به هم تحریک د دغې د هغه دپاره چې یعنې ازاله دی وشي د دغې دپاره به هم پی ټي ایم تر آخره ورځې پورې ولاړ وي. لینډ ماین صفا کولو دپاره نه صرف صفا کول بلکې چې څومره هم په لینډ ماینز کې یا په عام دماکو کې معذور پښتانه دي د هغې دپاره علاج او لایف ټایم وظیفې دپاره به پی ټي ایم تر آخره ورځې پورې ولاړ وي. داسې په کاروبارونو چې کوم د کراچۍ د آیل ټینکرو نه واخله یا نور چې څومره غشي قبضې په دې دپاره به پی ټي ایم ولاړ وي. په وارنټر په نامه باندې چې د عامو پښتنو سره څومره ظلم شوی دی، څومره جبر شوی دی، که څوک وي که نه وي پی ټي ایم به ښه کلک ولاړ وي او د خپلې خاورې د خپلې پښتونخوا د خوږې پښتونخوا د ښکلې پښتونخوا د خدمت دپاره به د پښتونخوا بچي ټول په یوه صف کې په یو ځای همیشه سره ولاړ وو. حوصلې جګې ساتئ. هیڅ پی ټي ایم یا دا تحریکونه یا د کام وطن خدمت دپاره زه چې به دا څو وخت د یوه دوه میاشتې چې وګرځېدم څومره چې زیاتوالی راغلی دی دا جذبه کې، څومره چې خلک ورته نور ډېر شوي دي، څومره چې په اتفاق کې نور برکت راغلی دی، بیخي ورته حیران یم. په سوات کې وګرځېدم، خیبر ته لاړو، بنو ته لاړو، نورو علاقو ته لاړلو چې څومره نو د پښتانه نور اعتماد زیات شوی دی. پښتانه یې لږ په دې پروپیګنډۍ پسې کړې وه چې دلته د پی ټي ایم والا جنګ راوړي یا هغه کوي یا دغه کوي یا د پلانکیوغ د بي ټیم دی یا د هغو خلک دي یا د دغو خلک دي یا د ایسای خپل دي یا د را ولا راوستي دي یا لیبرل دي یا د هر یو ته خپل کړي و. هغه ما ایکسپلین کړي دي یو ځل بیا د تکنیک هغه پروپیګنډا اوس ولسونو ولیدله چې دروغ دي. پښتنو اول هم اعتماد نه پرې کړی و او اوس هم د هر ځای پښتانه سره ولاړ دي. د یو علاقې پښتانه هم چې دغه محسوس هم نه کوي چې زموږ سره ټول پښتانه نه دي وره. یره د یرې خبره ده، حیران یمه چې د پښتونخوا اوبه بسخي او دی به د پښتونخوا د علاقې نه د نور علاقو نه راغلي غیر خلک دلته چې لوکل وي ظالمان خلک د هغې نه به پې یریږي. څنګه به یریږي که ته د نورو خلکو نه ویریږي، د ظالمانو نه ویریږي، د خپل پښتونخوا وطن اوبه به څنګه څکې؟ څنګه به د خپله خاوره باندې قدمونه ږدي؟ څنګه به د خپله خاوره ته ورګوري؟ یری نشته دی. د خپلې خاورې د خپل وطن دپاره د دوی د جوړولو ده او د ښه ژوند دپاره همیشه موږ پښتانه تیار یو. په دې کې د چا هیڅ بدمشي نه منو. چې کوم هم ملګري قرباني ورکوي، دوی جیلونو ته ځي یا بل څه کوي، په هغې حواله سره ملګري همیشه چې راوځي دوی ته نور سکون ملوي. نه د یو ملګري پور پرېږدو، نه د پښتونخوا وطن یوه مسله پرېږدو. خدای مو تل آباد لره، خدای مو تل خوشحال لره. کیدای شي ډېرې خبرې پاتې وي خو بیا هم ستاسو سره به په ژوندۍ بڼه دا شریکوو. آخر کې دا وایم چې څنګه هم د کورونا شدت کم شي یعنې دا په ختمولو شي، پی ټي ایم به مشترکه چې څومره هم مسلې روانې دي دا اوس چې کومې وشوې دا یوه یې هیره نه ده، په دې به خپل خط تیز کمپین شروع کړي. اکه په مذاکرات کې ټول منل، ټولو ته یې انصاف منه. موږ صرف دا نه ده چې دلته مړی وکړه بیا 50,000 روپۍ ورکړه او کیسه ختمه. داسې نه ده. د پښتنو وینې دومره ارزانه نه دي، نه دومره لږ قیمت دی. دا به په انصاف صفا کوي. نو خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحال لره. دا تحریک خپله خاوره د یو سیکنډ دپاره نه هیره ده، نه یې هیروي، نه یې هیرېدی شي. سوچه د دغې وطن سره مینه دا د تحریک د هر وګړي لوی همت دی. زموږ ټول یو غیر پارلماني سیاسي مزاحمتي تحریک چلو. موږ د په خپله لار کې زموږ لوړ اخلاق، ښې خبرې او کلک مزاحمت او دشمن ته کلک ودرېدل دا زموږ تر ټولو غټ احتیار دی. ملګري د همیشه د په لاس کې ساتي. خدای مو آباد لره، خدای مو خوشحال لره. مننه، ډېره مننه.